Here again in the chapter lines and angles, I have selected 5 questions, in which very first question is, if a side of a triangle produced on both the direction, here I am taking side BC of triangle ABC, is produced on both the direction from C to B up to D and from B to C up to E, then exterior angle formed by these two, this side, that is ABD and as well as ACE, be combinedly greater than 180 degree. Means side BC of triangle ABC is produced in both direction, then sum of the exterior angle so forms, उससे जो दो exterior angle बने is greater than 180 degree. Means if side BC of triangle ABC is produced on both the direction up to D and E, here side solution में आ जाते हैं हम लोग. Side BC is produced in both direction up to D and E as shown in the figure, इससे क्लियर हो जाएगा पूरा कि क्या करना है हमें. Then we have to prove that angle ABD plus angle ACE is greater than 180 degree. This angle plus this angle be greater than 180. Now, if you just think about that, कि what is the property of exterior angle in a triangle, that sum of its two interior opposite angle equal to the exterior angle. Means if you find that angle ABD, exterior angle ABD, you just see the figure, you will find that this angle ABD must be equal to this plus this. Clear है? Angle A plus angle C, angle A plus angle ACB. ठीक है. ठीक उसी तरह एंगल ACE जो दूसरा वाला एंगल है, वो इसके और इसके सम के बराबर होगा. इसके लिए ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हुए, इसके लिए ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हुए या नहीं हुए. सो in this case ACE is equal to again angle A plus ABC. इन दोनों ही केसेस में प्रॉपर्टीज क्या हुआ, इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक तो उसका एडजेसेंट एंगल होता है ना. ठीक है. नाउ अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो. इन दोनों का सम तो ही निकालना है हमें. Adding 1 and 2 we get क्या मिलेगा. इधर ले लो आप ABD और फिर ले लो आप ACE. तो इधर मिलेगा एंगल A ACB और दूसरे वाले का वैल्यू है एंगल A प्लस ABC. ठीक है ना. तो अब आप इसको थोड़ा सजा लो. एक A ले लो, फिर ABC ले लो, फिर ACB ले लो. क्या बचता है आपने, हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, एक बचता है, एक इसको भी रख लो. हियर यू सी दैट दीज थ्री एंगल्स आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC. एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB. व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स? It must be 180 degree and this is left 1A, angle A. So क्या पाया हमने यहाँ पर? We have just
find that the value of ABD plus ACE is 180 degree plus what? Angle A, or angle A is something greater than 0. So the value of this 180 plus A certainly be greater than 180 degree. Is it or not? भाई अगर A की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. सो 180 में हमने कुछ ऐड किया है तो वो पूरी वैल्यू 180 से तो बड़ी ही होगी. तो क्या पता चला हमें ये पता चला कि जो ए बी डी प्लस ए सी था उसकी वैल्यू 180 प्लस ए हमने निकाला था वो 180 से बड़ा हुआ, क्योंकि ए के कारण 180 प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन 180. सो वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल ए बी डी प्लस ए सी ई इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. यानी when a side of a triangle is extended on both sides, we have two exterior angles, and then we find that sum of these two exterior angles must be greater than 180 degree. This is a property, and this is the first question today. Now we are going for next for today. I am going to solve 5 questions. Okay. Question. Now you see this question. Here in triangle ABC, in which angle B is 90 degree, AD and C are the bisectors of angle A and angle C of triangle ABC respectively. ABC as well I said 90 degree. Then find the value of angle ADC and angle AEC. Sum of angle ADC and AEC. Second question. Prove that if two arms of an angle are perpendicular to the two arms of another angle, then angles are either equal or supplementary. Figure is not given, you have to draw. In the next, in triangle ABC, angle DAC, AB divides angle DAC in such a way that the ratio of the two angles, DAB and BAC, are in the ratio 1:3. DA is produced up to E, such that CAE is equal to 108 degree, and also it is given that AB equal to DB. Then find the value of X. X कहाँ पर है? X है यहाँ पर, ये C. Angle C is X. तो find the value of C. And today's last question will be, in triangle ABC, one of the side AC and AB में comparison दिया हुआ है कि AC is greater than AB. AE is bisector of triangle angle ABC. AD is perpendicular to BC. Prove that angle DAE, perpendicular AD और bisector AE के बीच का angle is equal to half of the difference of these two angles B and C. तो ये 4 क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे. ठीक है, तो इसके सेकेंड क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा. Question is that there is a triangle ABC where B is 90 degree, bisector of A is AD, मीन्स ये दोनों एंगल बराबर है, इक्वल है, इसको x और x दिया हुआ है. फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट एट यहाँ पर D, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, उनकी वैल्यू y के बराबर है. ठीक है ना, एंगल की वैल्यू y के बराबर है. और हमें निकालना है ADC प्लस AEC. ठीक है ना, ध्यान देने की बात है. क्वेश्चन आपने देख लिया था, थोड़ा सा फिर से बैक होकर क्वेश्चन को फिर से रीलुक कर लीजिए, देख लीजिए, तो हम लोग इसको करते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABC, angle B equal to 90 degree, and we know that angle A plus B plus C 180 होता है. यहाँ से A और C 180, इस B को ट्रांसपोज किया जिसकी वैल्यू 90 थी इधर लेके, तो क्या हो गया? एंगल A प्लस एंगल C इज 90 डिग्री. तो व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल C इज 90 डिग्री, 45 डिग्री. सॉरी, अगर हाफ हो गया
ए प्लस सी अगर 90 है तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ सी क्या हो जाएगा 45 डिग्री. नाउ सिंपली हाफ ऑफ ए इज व्हाट एक्स एंड एक्स एंड हाफ ऑफ सी इज वाई. सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री. इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो. किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल मिलके 90 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180. तो ये दोनों एंगल मिलके 90 हो गया. तो इन दोनों का हाफ क्या हो जाएगा 90 का हाफ, यानी कि 90 का हाफ 45 हो जाएगा. और ए का हाफ x और x है, सी का हाफ y एंड y है. तो ए के हाफ के जगह x, सी के हाफ के जगह y लिखा, x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री. ओके. नाउ अब देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज लागू होती है. यहाँ पर हमें जो निकालना है उसको हम लिखते हैं. इन ट्रायंगल जस्ट आई एम गोइंग टू ABD में डू यू थिंक ADC इज एक्सटीरियर एंगल? ADC इसको ऐसे केवल हम लोग समझें, ये यहाँ पर D, थोड़ा सा फिगर लिया हमने B और ये C, बाकी फिगर को हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं. तो दिस एंगल इज इक्वल टू BAD प्लस ABD. इज इट और नॉट? BAD है x और ABD है 90. ठीक है. ठीक उसी तरह अब थोड़ा मैं फिगर को थोड़ा और डिसमेंटल करता हूँ दूसरी तरफ से. अब मैं इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ. क्या है वो? ये ऐसे वाले C, यहाँ पर D, सॉरी D दो जगह हो गया ना, यहाँ पर E है बेटा, सॉरी, दिस पॉइंट इज E. सो यहाँ पर लिया हमने E, ठीक है ना, A, ये B है ऑलरेडी और इधर A था. अब इन ट्रायंगल EBC, इन ट्रायंगल, ये फिगर हमने लिया, इस फिगर का ये वाला हिस्सा इधर वाला हिस्सा मिटाकर ये और ये लिया है. तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल EBC, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है AEC, वो किसके बराबर है? तो B और इसके एंगल B प्लस एंगल ECB. B क्या है 90 और ये एंगल क्या था Y. तो व्हाट एंगल इज AEC? इट इज 90 प्लस Y. ठीक है ना. ADC क्या 9x प्लस 90. सो जो हमें निकालना है ADC प्लस AEC, यही निकालना था ना क्वेश्चन नंबर 2 में. ये इनकी वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं. ADC का वैल्यू निकला था x प्लस 90, AEC का वैल्यू निकला 90 प्लस वाई. ओके. अब x प्लस वाई कर लो और 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री. एंड व्हाट इज x प्लस वाई? x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई एक्चुअली है 45 डिग्री. सो दिस इज 225 डिग्री. 180 डिग्री प्लस 45 is 225 degree. This is the answer of second question. Do you think this is another type of question other than in your NCERT book? This is from reference book and it helps you a lot. The third question I have written. Prove that if two arms of an angle, let it be an angle, are perpendicular to the two arms of another angle, means perpendicular. ये एक आर्म से पहले एंगल का ये दोनों आर्म्स दूसरे एंगल के दोनों आर्म्स में बारी बारी से, दोनों नहीं, ये आर्म इस पे परपेंडिकुलर है और ये वाली आर्म्स इस पे परपेंडिकुलर है. देन प्रूव दैट, अगर हम इसका नाम दे देते हैं कि ये ABC है और ये PQR है, PQR. ठीक है. तो या तो ये एंगल इक्वल होगा या तो सप्लीमेंट्री होगा. देखिए फिगर एक ऐसा बनेगा एक ऐसा भी बनेगा कि हमने ABC को ऐसे लिखा ABC.
पी क्यू आर ऐसा हो गया सर, इस तरह से, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, मतलब बी और पी एक दूसरे के, बी और क्यू सॉरी, एक दूसरे के आमने सामने आ गए, इसमें एक ही तरफ है पी क्यू आर। तो यहां दो केसेस बनेगा फिगर का। इन दो फिगर में आपको पता चलेगा कि एक में इक्वल है और एक में इक्वल नहीं है। यहां लिखते हैं हम, आर्म्स बी ए एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू द आर्म्स पी क्यू, बी ए पी क्यू, बी ए किस पे है, क्यू आर, यहाँ बी ए किस पे है, यहाँ पर आर यहाँ ले लेते हैं ताकि एक ही लैंग्वेज में दोनों हो जाए, और बी सी है पी क्यू पे, क्यू आर एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली, एक ही लैंग्वेज से दोनों काम चला गया। केस वन, अगर ये हम केस वन लेते हैं, ये वन केस है, ये सेकंड केस है। देखो क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, इन ट्रायंगल, इसका नाम हम दे देते हैं एम, इन ट्रायंगल बी एम पी एंड ट्रायंगल क्यू एम, जो परपेंडिकुलर है उसका तो नाम पी नहीं है, वो दूसरा, उसका नाम दे दो आप एन, इसका नाम दे दो आप टी। तो बी एम एन एंड क्यू एम टी, दोनों ही एंगल में बी एम एन और बी एन एम 180 होगा, और इसका एंगल क्यू टी एम और क्यू एम टी, ये भी होगा 180। मतलब ये सेट और ये सेट इक्वल हो गया। अब आप क्या देखो कि ये जो एंगल है इक्वल टू 90 है, और इधर ये जो एंगल है ये भी इक्वल टू 90 है, बिकॉज आर्म्स आर गिवन टू बी परपेंडिकुलर। सो कैन आई कैंसिल दीज टू? So we are with angle B plus BMN is equal to Q plus QMT. Okay. Again you will find that BMN and QMT are vertically opposite angle. Angle BMN and QMT are equal. क्यों? Vertically opposite angle है. So we can again cancel these two. So what we are left with, that angle B equal to angle Q. यही दोनों एंगल है, एंगल B और एंगल Q के आर्म्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हमने दिखाया इस केस में, पहले वाले केस में, कि B और Q इक्वल हो गया, ठीक है। देन व्हाट अबाउट these two? आप क्या करो, अब ये हमें इन दोनों को दिखाना है ना, तो हम क्या इसमें से दिखाते हैं, सीधे क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल BPQA, इसको मान लो आप P नहीं है, यहाँ भी वही मान लेते हैं हम लोग, जो इसका परपेंडिकुलर था वो M और N। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल BMQN, चारों एंगल का सम पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये एप्लीकेशन आप पहले भी आप क्लास 7, 8 वगैरह में जानते हैं कि चारों एंगल का सम 360 होता है। सो एंगल BMQ, Q एंड QNB मिलके 180, 360, ठीक है ना। अब ये नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं, पहला पार्ट जो था, बल्कि यहां भी हटा देते हैं, फिर से लिख लेंगे। सो इन क्वाड्रिलेटरल BMQN, एंगल B, angle BMQ, angle Q, angle QNB is nothing but 360 degree, out of which B we don't know, but BMQ is 90 degree given, Q we don't know, again QNB is 90 degree. अब what is B plus Q? Is nothing but 360 minus 90 plus 90, 180, that is 180. Here in this case we find the sum of these two angles B and Q, the given angles, is equal to 180 degree, means B and Q are supplementary.
and this we have to prove that if the arms of one angle are perpendicular to the two arms of the another angle, then angles are either equal in this case, पहला जो प्रूव किया था, और सप्लीमेंट्री इन दैट केस. सो दो तरह के फिगर हो गए. आर्म्स परपेंडिकुलर कैसे होंगे? एक तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है. कंडीशन फुलफिल हुआ, एक केस में इक्वल हुआ और एक केस में सप्लीमेंट्री हुआ. सो दिस इज द third question. I think this is the third question of the today's 5. Next one is, again it is a figure. I will write, you just remind it that in this figure AB divides angle DAC in the ratio 1:3. Side DA is produced to E such that angle CA is 108 degree and AD is equal to AB equal to DB. You are required to find C whose value is given to be X. तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक ना. पहले क्वेश्चन में लिखता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन बनाता हूं. The question is that AB divides angle DAC in the ratio 1:3. DA is produced to you such that CAE equal to 108 degree, AB equal to DB, then find the value of X. सबसे पहले ये एंगल डिवाइड है 1:3 में, तो हम इस एंगल को निकालते हैं. यू नो दैट DAC प्लस CAE मस्ट बी 180 डिग्री, लीनियर पेयर. अब इसमें से DAC तो नहीं मालूम, लेकिन CAE मालूम 108 डिग्री. सो व्हाट एंगल इज DAC? DAC इज 72 डिग्री. 72 डिग्री, ये पूरा एंगल 72 डिग्री है. ऑल्सो एंगल DAB इज टू BAC, इट इज गिवन 1:3. सो लेट DAB इक्वल टू X, तो BAC क्या हो गया? 3X. तो ये जो X और 3X है, सॉरी X नहीं मानते हैं क्योंकि X निकालना है, Y मान लो, कुछ अनदर. सो ये y और 3y ये मिलके निकला है 72 पूरा. सो 4y इक्वल टू 72 डिग्री. सो व्हाट अबाउट y? y इक्वल टू 18 डिग्री. y इज व्हाट? y इज 18 डिग्री. देन अब x निकालना है, y निकल गया 18 डिग्री. y कौन सा है? DAB. DAB. Also, in triangle ABD, AB equal to DB, तो इसका एंगल बराबर होगा, D जो है वो किसके बराबर होगा? DAB, यानी ये 18 डिग्री के बराबर होगा. ये एंगल 18 डिग्री के बराबर हुआ. टोटल एंगल 72 डिग्री के बराबर हुआ. तो x कितना होगा? सो इन ट्रायंगल ADC एंगल D प्लस DAC प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, जिसमें D अभी हमने 18 निकाला, O 72 निकाला, ये x दिया हुआ है. तो इट इज x इक्वल टू 180 माइनस दिस इज 90, आई थिंक 90. सो x इक्वल टू 90 डिग्री इज द आंसर. डू यू थिंक और हैव I had any mistake? DAC. So ऐसे भी ये 108 है, ये 80 निकला, तो ये तो 90 होना ही होना है. अब if you see the figure, if it is given 1:3, I have taken DAC कहा था हमने, लिया है 1:3. लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं सर ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, इसको अगर आप 3y मान लो, इसको y, तो उस केस में ये 72 निकल जाएगा. 72 निकलेगा तो ये 72 हो जाएगा. तो 108 is equal to x plus 72. in that case x plus 72 degree is equal to 108 degree. So x becomes 108
minus 72, that is 6 and 36 degree. In sorry 72 तो ऑलरेडी है 72, हाँ 72 तो ये पूरा है ना, तो यहाँ से आएगा सॉरी ये दूसरा वाला ये वाली एंगल आएगी 3y आ जाएगी 54 डिग्री, तो 54 डिग्री उधर होगा और प्लस x होगा 108 के बराबर, तो 108 माइनस 54 इज 54 डिग्री. इट डिपेंड्स, बट चूंकि इसने जो रेशियो कहा है 1:3 और ADC को कहा है डिवाइड करने के लिए DAC को, तो हम अगर इधर से स्टार्ट करें x और 3x तो भी चलेगा, और अगर आप फिगर को देखते हुए कि ये बड़ा दिख रहा है छोटा x और 3x या y और 3y लेके चलेंगे, तो या तो आंसर आपका ये निकल के आएगा या तो आंसर आपका ये निकल के आएगा. अगर ये एंगल बड़ा है तो ये निकलेगा, और अगर ये एंगल छोटा हो गया तो 90 निकलेगा. हमें क्लियर? तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया कि कौन छोटा कौन बड़ा. उसने कहा कि DAC को डिवाइड कर रहा है अभी. आप फिगर ड्राइंग देख के बताइए कि कौन बड़ा और छोटा होना चाहिए. ठीक है, उस तरह से आप बनाएंगे. तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन. एंड नाउ वी हैव लेफ्ट विथ वन मोर क्वेश्चन. हाँ जी, क्वेश्चन ये था, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें से AC बड़ा है. यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉपर्टी और आगे की है. मतलब ये क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स का, लेकिन अगर पूरी सिलेबस व्हेन वी हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस देन यू कैन फाइंड दिस सॉल्यूशन. AC इज ग्रेटर देन AB. AC बड़ा होने से क्या होगा, इसके इधर ज़्यादा, ये एंगल इसके मुकाबले बड़ा होगा. नथिंग, बड़ा होने से जो बाइसेक्टर होगा वो थोड़ा इधर आएगा और परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा. ये हमने D लिया है, ये हमने बाइसेक्टर लिया है. और AC के बड़ा होने से एंगल B बड़ा होगा C से, तो B माइनस C लिखेंगे. हेयर AE बाइसेक्ट्स एंगल A. A मीन्स BAC. तो आप कह सकते हो कि एंगल BAE इक्वल टू एंगल EAC इक्वल टू हाफ एंगल BAC. ये एक चीज़ हमें मिल गया. एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC. इससे ये पता चला कि जो एंगल ADB है वो 90 डिग्री है. ADB कहो चाहे ADC कहो, वो 90 डिग्री है. तो किसी भी राइट ट्रायंगल में if one angle is 90 degree then sum of other two angles, this implies that angle B and angle BAD be also 90 degree. इन दोनों से किसके कारण, इन ट्रायंगल ABD. चूंकि उसका एक एंगल 90 है तो सम ऑफ अदर टू एंगल, एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, x + y = 45 करके दिखाया था, जिसमें उसमें भी था कि एक एंगल 90 तो बाकी दो का सम मिलकर 90, तो उनके हाफ का सम 45. क्लियर है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, ये भी दिमाग में होना चाहिए कि प्रूव क्या करना. एंगल DAE, ये वाली एंगल, ये होगा हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जो दोनों बेस एंगल है. अब इसमें थोड़ा सा खेल है, केवल एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, और जरूरत के हिसाब से हमें कौन सी चीज चाहिए वो देखना है ना. ये जो AEC है देखो एंगल, वो बड़ा मजेदार सा चीज है ना. क्या है, पूरे इन ट्रायंगल अगर आप ABE देख लो तो जो एक्सटीरियर एंगल हुआ AEC वो एंगल BAC और प्लस B के बराबर हुआ, सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. एम आई राइट? उसी तरह इन ट्रायंगल अगर हम DAE कहें तो फिर से वही एक्सटीरियर एंगल आया, उसके लिए भी AEC, बट यहां पर एंगल DAE प्लस एंगल ADE आया, यानी DAE प्लस 90 डिग्री आया. सेम एंगल है, माइंड इट, एंगल सेम है बट कहानी दूसरा है. सो इन द वे आई कैन से दैट DAE प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू BAE
BAE plus angle B. Okay, BAE plus angle B, and BAE is what? Half of angle BAC. Half of angle BAC. ठीक है सर? ओके, चलिए, DAE is half BAC प्लस B माइनस 90. अब मैं हाफ अगर एलसीएम ले लूँ पूरे में नीचे 2, तो ये हो गया BAC. कहाँ लिख दिया यार? तो हमने क्या कहा कि एक बार एक्सटीरियर एंगल को इसके बराबर दिखाया, फिर दोनों को इक्वल दिखाया. BAE क्या है? चूंकि AE बाइसेक्टर है तो BAE हाफ ऑफ BAC. अब इस 90 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, 2 एलसीएम लिया, 2 BAC ट्वाइस B 180. हाफ तो आपको चाहिए ना प्रूफ करने में, हमने ले लिया. 2 नीचे जो है सो है उसको बाहर कर लिया. अब दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल 2B. नाउ 180 इन ट्रायंगल ABC. Can I write angle 180 degree as A, as B plus B and plus C? We can write or not. हम लिख सकते हैं 180, क्योंकि इन ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ द 3 angles is 180. Half angle A plus 2B minus angle A minus B and minus C. And now simplify you. ये दोनों कट गए, 2B से B गया केवल B और माइनस C. अब हमने प्रूफ किया है नहीं किया? A और A कैंसिल, 2B minus B is B and minus C. So the angle DAE is half of angle B minus angle C. This is the fourth one and important. इसमें देखो खेल क्या किया हमने, सिंपल सा एक एंगल ऐसा मिला हमें एक्सटीरियर AEC, जो इस BAE के लिए भी एक्सटीरियर हो गया और ये ADE के लिए भी एक्सटीरियर हो गया. तो जब BAE के लिए एक्सटीरियर हुआ तो इस एंगल को हमने BAE प्लस B के बराबर लिखा, और जब इस एंगल को लिया तो इस एंगल को लिया हमने ये एंगल DAE प्लस इसके बराबर, और ये एंगल जो था वो 90 था, DAE प्लस 90, ये BAE प्लस B. तो चूंकि दोनों एक ही एंगल AEC के इक्वल हैं, सो दीज टू आर इक्वल. हमने इन दोनों को यहाँ पर इक्वल कराया, और जिसको प्रूव करना था DAE को, केवल उसको एक तरफ रखकर बाकी सबको दूसरी तरफ रख गया. हाफ BAC प्लस B माइनस 90, फिर 2 एलसीएम ले लिया तो BAC प्लस 2B माइनस 90 इंटू 2 180 हो गया. अब अपने काम के लिए चूंकि वी नीड एंगल B एंगल C, सो इन द प्लेस ऑफ 180 डिग्री वी जस्ट राइट डाउन. अब यू कैन से कि सर why not you have taken in triangle ABE, that angle B plus BAE plus angle AEB, because we not required here. हमें जिसकी ज़रूरत है, हमें जिस रास्ते जाना हम उस रास्ते को जाने, जिस जगह जाना उसकी और के रास्ते को खोजेंगे ना. सो हमने 180 डिग्री के लिए इस पूरे ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल को लिया, एंगल B, होल एंगल A एंड होल एंगल C. ठीक है, लेने के बाद फिर ब्रैकेट तोड़ा तो एंगल A प्लस 2B माइनस A माइनस B माइनस C. अब A और A कैंसिल हो गए, 2B से B माइनस होके सिंगल B दिया, ठीक है ना, और माइनस C हुआ, हाफ ऑफ B माइनस C गिव्स यू DAE. So this proved the question. So this is 5 question of this particular topic, lines and angles, and I had tried to take different type of questions from this chapter. Now we had studied about number system. Most of them I don't think you have learnt or not, I don't know कि उस समय तक. In case of PPTs, there is no video on the topic, I think, square and number system. My video, another video may be there. Then we have learnt about polynomials. Polynomial. After polynomial, we have discussed about, I think, coordinate geometry.
coordinate geometry, then system of linear equation in two variable, fourth one, fifth one Euclid, introduction to Euclid geometry. Now again I am telling you that before this session 2021, up to last year, question from the chapter Euclid geometry, introduction to Euclid geometry, were asked, one questions of 2 marks or 3 marks. Okay, but from this session 2 2021, the chapter Euclid, introduction to Euclid geometry, is not for assessment. Assessment means it is not in your examination point of view important. It is only important in context of geometry, study of geometry. What you are going to learn in the Euclid geometry, you have to use in the other part of the geometry, like lines and angles we are studying. Next part is the congruence of triangles, then quadrilateral, then area. In any field of the geometry, you have to discuss about the fact, concepts, axioms, postulates, वगैरह वगैरह. And then we have taken the sixth topic, lines and angles. And lines and angles I think I have given you 4 or 5 videos, including this one. And I tried my level best, and I'm trying to give you basic and some sort of different type of questions and their solutions. Now it is on you whether you can go for this topic very well or not. I had also given the syllabus. One more thing, you all should go for CBSE site and download curriculum guide, curriculum for 2020 and 21, and go through the syllabus, curriculum, type of questions to be asked, how many objective type questions, what is the knowledge based question, quality based question, skill based question, all these types of what should be the assessment criteria, all these things are given in the curriculum guide. So you all must have go for the curriculum guide. Okay, thank you and have a nice day.